Okay, so once again, I'm repeating all the things which I had just now explained. First, I said that an atom used to be spherical in shape. The next thing I said that in an atom, we have three components: electrons, protons, and neutrons. The number of electrons used to be equals to the number of protons. It is at the neutral condition. एक neutral condition में number of electron or proton equal होता है. When we see for the charges, when we go for the charges, then we used to observe. Uh, yes, Akshat, I'm just going to come to that one only. Before understanding that one, you have to understand this one. Okay, Akshat, is it clear? I'm coming to that one. What you had asked, I'm going to explain for that one also. But before that, you have to see for this. Okay, so when we see for this atom, then we know the electrons used to be negatively charged, protons used to be positive in charge. Neutron don't have any charge, and the number of neutron can be equals to the number of proton. It can be greater than number of proton, and it can be less than number of proton also. We will understand this one more detail in more detail when we will discuss about atomic mass. But right now we have to understand the atomic number. हम लोग को atomic number समझना है. So atomic number is the number of protons present in an atom. किसी भी एटॉम में कितना प्रोटॉन मौजूद है उससे उसका एटॉमिक नंबर निकलता है. ठीक है. एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर to go for the electronic configuration as well as to identify the electrovalency of an atom. जब हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोवैलेंसी कैलकुलेट करते हैं then also we have to see for this. Okay, so just a minute, let me just clear it out, then I'm going to come now. अब देखो जैसे कि अभी अभी हम बताए हैं एटॉमिक नंबर होता क्या चीज है. Just now I said atomic number is equals to number of protons in an atom. ठीक है. तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके अंदर प्रोटॉन कितने मौजूद है उससे निकल कर आता है. सच एज फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं. सो इन ऑक्सीजन वी ऑब्जर्व दिस थिंग दैट देयर आर how many protons? 8 protons are there. How many electrons it is having? 8 electrons. And how many neutrons it is having? It is having 8 neutrons. Okay, यानी इसके अंदर प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन्स 8 है और न्यूट्रॉन्स 8 है. देखो हम तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि एटॉम के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस एटॉम के बीच में रहता है. ठीक है. एंड वी आर नॉट एबल टू टेक इट आउट. हम लोग एटॉम में से उस प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं या वो निकलेगा नहीं. इट इज स्टेबल ओवर देयर, वो वहां पर स्टेबल रहता है. ठीक है. बट इलेक्ट्रॉन्स आर इन सेपरेट ऑर्बिट्स. ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग ऑर्बिट्स में होते हैं, वो बाहर की तरफ ऑर्बिट्स में होते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेकन आउट ऑफ एन एटॉम and electrons can be given in an atom. You have to understand this thing. किसी भी एटॉम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है या उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है. Right now I said this thing that we can't take out or take in protons or neutrons. हम लोग प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को ना निकाल सकते हैं ना ही उसके अंदर डाल सकते हैं. But there is a possibility that electrons can come out or electrons can get in the atom. But here also we have to understand this thing. It is not on our choice. ऐसा नहीं है कि वो मेरे चॉइस के हिसाब से होगा कि किसी भी एटॉम में वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या किसी भी एटॉम में से इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दिया जाएगा. It is not according to my choice. It depends on what kind of element that is. ये किस तरह का एलिमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है. और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को वैलेंसी जानना पड़ेगा और वैलेंसी समझने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा. और इलेक्ट्रॉन जो डिवीजन है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डिवीजन्स हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं. तो जब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, दैट इज एक्चुअली द डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. वंस अगेन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इन द सेंटर. वो तो सेंटर में न्यूक्लियस में बैठी हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट्स में है, अलग अलग ऑर्बिट्स में है. ठीक है, तो कितनी ऑर्बिट्स में है, कितने कितने ऑर्बिट में जा सकते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. सी, वी कैन गो विद द ऑर्बिट k, l, m, n and so on, and each orbit has a capacity. देखो यहां पर इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझने की जरूरत है. हर एक ऑर्बिट की एक कैपेसिटी होती है. कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट कैन होल्ड, यानी वो ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकती है, दैट इज कॉल्ड टू बी इट्स कैपेसिटी. So it been done by Bohr. Niels Bohr was the scientist who had done this one. He had given a formula. उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था, that is 2n square. 2n square is the formula to identify the capacity of the electrons in a particular orbit. So the k is the first orbit. So if I will go for the solution for n as 1, n को हम 1 लेकर चलते हैं अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो ये हो जाएगा 2 into 1 का स्क्वायर. तो यहां पर हो जाएगा 2 into 1, so that is going to be coming as 2. तो फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है, 2. This is the maximum capacity. It can hold maximum this many of electrons. The second one, अगर हम सेकेंड ऑर्बिट के लिए जाते हैं, so 2 into 2's square it will be, so it will become 2 into 4 is equals to 8. तो सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी हो गई, दैट इज 8. दिस इज मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी. ओके, नाउ इफ आई मूव टू द थर्ड वन, if I go for the third one, then that would be 2 into 3's square, so that would be 2 into 9, that would be 18. Again 18 will be the maximum capability or capacity of holding in the third orbit. तो ये थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. बट while we are going to divide, we will play some tricks over there. कुछ tricks हम लोग वहां पर इस्तेमाल करते हैं. But if you need to find out what is the maximum capacity, so 2, 8, 18, 32. When you will go for the next one, you will get it as 32. यहाँ पे तुमको 32 मिल जाएगा. So this is the maximum capacity for the electrons to be kept over there. So how we used to divide it? Such as if I will go for oxygen, अगर हमको ऑक्सीजन के लिए ही जाना है, तो देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो उसके न्यूक्लियाई में बैठा हुआ है. ठीक है, उसके न्यूक्लियाई में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं. तो कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, हम लोगों को पता है यहाँ पर कि इट हैज 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स. तो उसका 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन उसके अंदर में बैठा हुआ है. नाउ इट विल गो टू द ऑर्बिट्स. अब हम लोग चलते हैं उसके ऑर्बिट पे. तो जब हम लोग उसका ऑर्बिट में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोगों को करना होगा. तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो देखो अभी अभी हम लोगों ने समझा है व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी एन ऑर्बिट कैन होल्ड. सो द फर्स्ट ऑर्बिट कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रह सकता है. तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट ऑर्बिट. अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट ऑर्बिट के पास, क्योंकि पहला ऑर्बिट का घर पूरा हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी पूरा हो गया. तो जब उसका कैपेसिटी पूरा हो गया तो हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए हैं. यस, देयर आर स्टिल इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आउट बिकॉज देयर वर 8 इलेक्ट्रॉन्स. 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब देखते हैं उसके नेक्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दैट वुड बी 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब ध्यान से देखो यहां पर, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स चले जाने के बाद इसके पास तो और इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं. सो व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट वुड बी 2 and 6.
यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन्स ही खत्म हो गया, तो यानी इसका डिवीजन हो गया। Is it clear till here? I will go for many examples. I will go for more examples. Till here, have you all understood or not? Or is there any doubt? Yes, sir. Yes? Okay, चलो अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, तब हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी पे भी आएंगे. Then we will come to that electrovalency, how to calculate for that one. Now let's see for sodium. चलो हम लोग एक लेते हैं एलिमेंट सोडियम के लिए, ठीक है? So in the sodium, what will happen? Just a minute. So here is Na, ठीक है? अब देखो Na में अगर हम लोग प्रोटॉन देखते हैं, we will get 11 protons. हम लोग वहां पर 11 प्रोटॉन्स देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? दैट इज आल्सो 11, बट द न्यूट्रॉन इज वन मोर ओवर देयर, सो दैट इज 12 न्यूट्रॉन्स। खैर अभी ज्यादा होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग बाद में जब एटॉमिक मास समझेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एटॉमिक नंबर से काम करेंगे। सो इफ आई विल गो फॉर एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, so what would it be? It would be number of protons. So what is the number of proton? That is 11. तो 11 हो जाएगी यहां पर इसके प्रोटॉन, ठीक है? अब देखो जब इसका एटॉमिक नंबर यहां पर 11 हो गया, तब हम लोग इसको ऑर्बिट में डिवाइड करेंगे। तो कैसे ऑर्बिट में डिवाइड करते हैं तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं इसके सेंटर पे, इसके सेंटर में आ जाते हैं जो कि इसका न्यूक्लाई है, and the nuclei contains the proton and neutron. वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंटेन कर रहा है। so it has yes अक्षत, so over here it will be having how many protons? तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? तो इसके पास 11 प्रोटॉन हो जाएंगे और 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो ये सारा इसके न्यूक्लाई में है, ये सारा का सारा अभी इसके न्यूक्लाई में मौजूद है। अब हम लोग आते हैं इसके फर्स्ट सेल में, इसके फर्स्ट सेल में। तो हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करने वाले हैं कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो फर्स्ट सेल का 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। हाउ मेनी लेफ्ट आउट? सो देयर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आउट। नाउ आई विल गो फॉर द सेकेंड ऑर्बिट। अब हम लोग आ जाएंगे इसके सेकेंड ऑर्बिट में। सो द सेकेंड ऑर्बिट हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ, सेकेंड ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? तो दैट इज 8 होता है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी। सो यहां पर हम लोग फिर से इसमें -8 कर देंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 1। तो फिलहाल हम लोग इसके 8 को भर देते हैं क्योंकि उसका सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इट मींस कि इसका सेकेंड ऑर्बिट तो कंप्लीट हो गया, इसका सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीट हो गया, it had fulfilled over there. Now still 1 electron is left out, so we will go for the third orbit. तब हम लोग यहाँ पे उसके थर्ड ऑर्बिट में जाते हैं। so we will obtain it like this, तो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा ये वाला। तो जब हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसका जब डिवीजन करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में हम लोगों के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। देखो ये थर्ड ऑर्बिट में आ गया। अगर हम इसका ऑर्बिट का नाम लिखते हैं KLMN, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 का कैपेसिटी था, 2 चला गया। सेकंड के ऑर्बिट में 8 का कैपेसिटी था, चला गया। M जो है वो 32 का कैपेसिटी रखता है, but only 1 electron is left out. No problem, we will keep 1 over there only. हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन रख देंगे। So 1 electron is in its last orbit. ये उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स का डिवीजन करते हैं। जब हम लोग एलिमेंट्स का डिवीजन करते हैं तो इस तरह से उसको डिवीजन करते हैं उनके अलग अलग ऑर्बिट्स में। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स को बांटना उनके अलग अलग ऑर्बिट्स के। तो देखो अभी तो तुम लोग जूनियर क्लास में हो तो तुम लोगों के लिए KLMN मेथड ही इजी रहेगा। फिर तुम लोग जब फर्दर हायर स्टडीज करोगे, जब 11th 12th में पढ़ोगे, तब एक और मेथड पढ़ना है वहां पर, वो है SPDF मेथड, ठीक है? सो वहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर हम लोग एक दूसरे मेथड से करते हैं। वहां पर सेल भी है, वहां पर सब सेल्स भी हैं, तो वो सब चीजें हम लोग एक एक करके समझेंगे बाद में। फिलहाल के लिए तुम लोगों के लिए ये जरूरी है।
फिलहाल के लिए तुम लोगों को ये जानना जरूरी है, और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आने लगेंगे। चलो एक और लेते हैं एग्जांपल, फिर हम इलेक्ट्रोवैलेंसी के ऊपर आएंगे। चलो ये तो हो गया सोडियम के लिए। चलो हम लोग एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं जो कि कॉमन एलिमेंट के रूप में ही आता है, क्लोरीन। से एज क्लोरीन लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई विल गो फॉर हियर। सो क्लोरीन, Cl, ठीक है। तो Cl अगर हम लोग क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन में हम लोगों को कितना मिलेगा, यहाँ पर हम लोगों को अगर इसमें इसका इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन, ये अक्षर तो 17। 17, ओके। तो हम लोगों को यहाँ पर इसके प्रोटॉन मिल गए 17, अभी हमको इधर भी 17 हो गया। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो हम लोगों के पास 17 को डिवाइड करना है। तो 17 को डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे, फिर से हम लोग उसी तरह से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो सेंटर में इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चला गया, इसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके सेंटर में चला जाता है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग इसके फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे। सो जस्ट अ मिनट, I will go for this 2 electrons. So here I am writing K, or I will write it at the top one. Oh, no, I will make it a separate one. K, L, M, N. ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी है 2, so I will give it 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने वहां पर डाल दिए। So after subtracting 2, how many left out? It's 15. अब 15 बचा हुआ है। तो सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी है 8. So over there I will go for now for the second orbit. तो सेकेंड ऑर्बिट में हम लोग डालेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट अ मिनट। Okay, so here I am going to put how many? 8 electrons. So that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो पहले में 2 हो गया, फिर 8 हो गया, 8 भी सब्सट्रैक्ट कर लिए, how many left out? 7. So we will go for now the third orbit. So third orbit's capacity is 18, but we will just now have only 7 electrons. तो हम लोग यहाँ पर 7 electrons का ही configuration करेंगे. So in the last orbit over here, that would be the last orbit over here. So यहाँ पर हम लोगों का ये आ गया तीसरा orbit. 1 minute please. Yes. So and 7 electrons left out over there. So I will place 7 only. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So like this we can do the electronic configuration. तो electrons के नंबर के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है. So after giving these seven electrons in the last orbit, we have no any more electrons left out. So there would be 3 cell. Okay, so over here when we are talking about chlorine, then we are having as 3 cell, 1, 2, 3, such as the sodium was also having 3 cell. तो यहाँ पर भी 3 सेल है. तो देखो डिपेंड करता है कितना बड़ा एलिमेंट है, कितने बड़े एलिमेंट है, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि उसके सेल कितने होंगे. अच्छा, एक चीज और भी आगे हम लोग करेंगे, एक साथ तो सारा नहीं बता पाएंगे. आगे हम लोग करेंगे किसी किसी एलिमेंट्स में या कुछ पर्टिकुलर और सीरीज में, कुछ पर्टिकुलर सीरीज ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग देखेंगे कि ये जो डिवीजन कर रहे हैं वो 2, 8, 8 के रूप में डिवीजन करते हैं. तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे, क्योंकि एक बार में बता देंगे तो फिर तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी. So we will discuss it in the next class that how we are taking 2, 8, 8 also and 2, 8, 14 also. So depending on the condition, we used to change it, because this K element method is very much suitable for the lower atomic number. जो छोटे atomic number हैं उसके लिए क्लासिफाई करना आसान है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े एलिमेंट्स में जाते हैं, जब हम लोग हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स में जाते हैं, तो वहां पर KLMN मेथड उतना सूटेबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग SPDF मेथड यूज करते हैं. वैसे तुम लोगों के लिए, अभी तुम लोगों के कोर्स के बेसिस पर यू कैन गो फॉर द एलिमेंट्स टिल 20, मींस एटॉमिक नंबर. 10, 20. Pardon? Yes. So I was just saying that till 20 it should Yes, be. yes, yes. So you have to go for till 20. So that much is enough. But as you will go for the higher classes, you have to study for more of the things. Okay. Now,
let's understand the next thing, and then we will come to see some more new things. Now, after understanding these electronic configuration, I hope that you all had understood how we can go for this electronic configuration. Now, we have to understand electrovalency too. So before we go for electrovalency, one more thing you need to remember, that is balanced electron. Balanced electron. So what is balanced electron? The number of electrons left in the last orbit of an atom after its electronic configuration is known to be or is called to be as the balanced electron. फिर से बताते हैं, देखो ध्यान से समझो। जब हम लोग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, जब उसका हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बांट लिए हैं उसके ऑर्बिट्स में, इसको बांटने के बाद जो लास्ट ऑर्बिट है, इसमें जो लास्ट ऑर्बिट निकल के आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों का सोडियम में भी लास्ट ऑर्बिट एम तक ही गया, मतलब थर्ड ऑर्बिट ही लास्ट ऑर्बिट गया है, यहां पर भी थर्ड ऑर्बिट ही लास्ट ऑर्बिट गया हुआ है. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट is called to be as balanced electrons. Okay, it is called to be as balanced electrons. So once again, what is valence electron? Valence electron is the total number of electrons present in the last orbit of an atom after its electronic configuration. Now, with the help of this balanced electron, you will be able to calculate the electrovalency. That's the interesting thing. With the help of this balanced electron, you can go for the calculation of electrovalency. So how can you calculate the electrovalency? See, if the valence electron is 1, 2, and 3, then its electrovalency will be directly +1, +2, and +3 respectively. Means for 1 it will be +1, for 2 it will be +2, and for 3 it will be +3, so on. And if the balanced electron is 5, 6, or 7, under that condition, the valency will be, for 5 it will be -3, for 6 it will be -2, and for 7 it will be -1 over there. ठीक है, तो ये याद रखना है कि कैसे याद रखना है, अगर हम लोगों के पास बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 आता है, तो बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? लास्ट ऑर्बिट में होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को. तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सोडियम का किया था, सोडियम का जब हम लोगों ने यहाँ पर किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोगों ने देखा थर्ड ऑर्बिट ही उसका लास्ट ऑर्बिट है. तो थर्ड ऑर्बिट जब उसका लास्ट ऑर्बिट है, तो हम लोगों ने ये पाया कि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है. तो यानी सोडियम का, अगर हमको सोडियम का लिखना हो इलेक्ट्रोवैलेंसी, देन आई विल राइट इट एज +1. हम लोग उसको +1 कहेंगे, क्योंकि 1 वाले को सीधे सीधे 1 हो जाता है, 2 वाले का 2 हो जाता है, 3 वाले का 3 हो जाता है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई इट इज सो, आई विल टेल दैट वन आल्सो. ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक रीजन है, अभी बताते हैं उसको. लेकिन उससे पहले आते हैं ये वाला. अगर किसी के लास्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, so for 5 it will be called to be as -3. 5 के लिए -3 कहेंगे, 6 के लिए -2 कहेंगे, और 7 के लिए -1 कहेंगे. सॉरी, here it is, I had written 7, it will be 1. तो यहां पर हम लोग 1 कहेंगे, -1 कहेंगे. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? So क्लोरीन के लिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो -7 लिखेंगे, it will be -7. अब ऐसा क्यों, सॉरी -1, sorry, I had written by mistake, again and again I'm putting that one. Okay, so as it is 1 over here. 7 के लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा. अब ऐसा क्यों होता है? So as I said, there is a reason behind it. So a very interesting reason is there. When the balanced electron, जब balanced electron 1,
2 या 3 होता है, then the atom thinks that I have a weak orbit. एटॉम सोचता है कि मेरे पास एक कमजोर ऑर्बिट है, बिकॉज इट्स हाउस इज नॉट फिल्ड अप ओवर देयर. उसका घर तो फिल नहीं हुआ है, उसका घर तो खाली है, ठीक है, क्योंकि उसके घर में चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन्स. अगर उसका थर्ड ऑर्बिट को पूरा करते तो उसको चाहिए अभी 18. बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं उसके कैपेसिटी के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो उसको 18 उसको चाहिए था एम एम सेल को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके पास सिर्फ एक है, यानी वो 17 उसको वहां पे चाहिए होगा. तो इतना सारा वो कैसे लाएगा इलेक्ट्रॉन्स, कहां से ला सकता है? सो द एटॉम थिंक्स इट इन दिस वे दैट इफ आई विल डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन लूज आउट कर देते हैं, देन द ऑर्बिट विच आई एम विथ, यानी जो मेरे पास बचा हुआ ऑर्बिट होगा, इट विल बी अ सॉलिड ऑर्बिट, यानी वो एकदम सेटिस्फाइड ऑर्बिट होगा. So what happens? The metals are electron donor. वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं अपने में से. So हम तुम लोगों को स्टार्टिंग में बता रहे थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लाई से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है. इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेकन आउट और कैन बी टेकन इन, मींस दे कैन बी गिवन इन अ पर्टिकुलर एटॉम. तो किसी भी एटॉम में हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल भी सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल भी सकते हैं. सो हाउ कैन वी डू सो? हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो जैसे हम तुम लोगों को बता रहे थे, ये हम लोगों की खुद के मर्जी पे नहीं है. इट इज नॉट ऑन आवर चॉइस, बट इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. सो इफ द एलिमेंट इज अ मेटल, अगर वो मेटल हुआ, then it will have a tendency to donate the electron. वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, and because they are donating in nature and they have a surplus of electrons as per to their thinking, that's why they have a positive valency. इसीलिए हम लोग मेटल्स का पॉजिटिव वैलेंसी कहते हैं, क्योंकि उसका वो जो होता है वो उसके पास सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, उसको वो चाहता है कि हम दे देते हैं. मेरे पास ये ऑर्बिट खाली पड़ा हुआ है, उसको उससे हमको भर नहीं सकते हैं. सो वो एलिमेंट सोचता है कि चलो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, तो मेरे पास जो ऑर्बिट है हम उसी में से सेटिस्फाई रह लेंगे, हम उसी को सेटिस्फाई कर लेंगे हम. तो ऐसा होता है. तो इसीलिए अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होता है, तो उसके लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रोवैलेंसी +1, +2 एंड +3 रेस्पेक्टिवली वो बन जाता है. ठीक है. सो दिस इज अ कंडीशन व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. The next condition which we will see for it, if the valence electron is 5, 6 and 7. अब देखो, जैसे कि लास्ट वाले ऑर्बिट में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है. वैसे तो अगर हम लोग कैपेबिलिटी के हिसाब में, कैपेसिटी के हिसाब से अगर देखते हैं, तो K की कैपेसिटी है 2, L की कैपेसिटी है 8 और M की कैपेसिटी है 18. लेकिन हम तुम लोगों को बता रहे थे, हम लोग कहीं कहीं पे कुछ ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पर 18 नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 8 का ही वैल्यू लेंगे. हम उसको 8 को ही कांस्टेंट मान के चलेंगे कि 8 ही वो अपना ऑर्बिट में पूरा करेगा. नाउ उस 8 में से उसके पास 7 है, उसके पास ऑलरेडी 7 है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से ले लिया, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कहीं से आ गया, then what will happen? It will fulfill its orbit. The orbit will be fulfilled over there and it will become satisfied. It will become satisfied by taking one electron from somewhere. So that's why I said earlier, electrons can be taken in or electrons can be taken out of the orbits for an atom. किसी भी atom के orbit से electron को निकाला जा सकता है, उसमें electrons को डाला जा सकता है. So this can be done for non-metals. This can be done for the non-metals. Non-metals में हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि उसमें electrons आ सकते हैं. So how many electrons it is required for? So 7 minus 8, so that will come as -1. Hence, for 7 valenced electron, the valency, the electrovalency is -1. ओके. तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल जाए तो वो अपना ऑर्बिट सेटिस्फाई कर लेगा. दैट्स व्हाई इट हैज एन इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ -1. So I hope that you all are understanding this thing.
Is it or not? Yes, Yes, student. sir. Yes, Yes. sir. Okay. Now let's see for that one. Only 1 or 2 minutes left out. Just see for that oxygen one. चलो हम लोग एक बार ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं. So in oxygen we had done it beforehand that the protons are 8, electrons are 8, neutrons are also 8. In its nuclei, the protons and neutrons will lie over there. And in its first orbit, the electrons will be there. So how many electrons will be there? 2 electrons. So there will be 2 electrons, 1 and 2. So K, first orbit, 2 electrons gone. The next orbit, let's see for the next orbit. So in that one, it will be, let's see. Okay, so after giving 2 electrons in the first orbit, how many electrons left out? 6 electrons left out. So in the next orbit, there will be 6 electrons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So over here you can see KL, the second orbit is having 6 electrons. तो देखो यहाँ पे इसके पास 2 ही orbit में इसका सारा हो गया. So what is its balanced electron? What is its balanced electron? That is 6. क्योंकि उसके last orbit में कितना बचा? 6 electron. And because of that, it has an electrovalency of 6. यानी उसका electrovalency कितना हो गया? 6 हो गया. Now, as it has an electrovalency of 6, what would be it? Sorry, a valence electron was 6. Sorry, valence electron was 6. And as its valence electron is 6, thus we go for its electrovalency as -2. इसका electrovalency कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, because it thinks that if I will get 2 electrons from somewhere, my orbit can be satisfied. ठीक है, मेरा ऑर्बिट यहाँ पे पूरा हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो 6 - 8 that will be -2. So it's become as -2 as electrovalence. ठीक है, हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि टाइम खत्म हो रही है और क्लास एंड हो जाएगी. सो इसीलिए हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से हम एक बार दोहराएंगे. ठीक है, सो इन द मीन टाइम यू ऑल जस्ट रिवाइज, and very soon we will have the next class, and in that class I will explain some more things in this. I hope that you all had understood till here. Is it